Sir, now again, your voice is not audible. Hello, you may please start. Let us not use the gadget. You may please briefly introduce the institute. Yes, sir. Okay, sir. A very good afternoon to all. I am Parishit Agrawal, IQAC Coordinator, GS College of Commerce, Varda, and I welcome you all on behalf of GS College of Commerce, Varda to this online workshop on one district, one product and rural entrepreneurship organized in collaboration with Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, MHRD, Government of India. Dear participant, we have with us resource person, Professor Dr. Chetan Chitalkar sir. He is the Director, Mahatma Gandhi National Council for Rural Education, Government of India. I welcome you, sir. I also welcome Dr. Nilesh Ramteke, Officiating Principal, GS College of Commerce, Varda, Organizing Committee members, Dr. P.V. Somnath, Dr. Yogesh Patinge, Professor Arvind Kade. I also welcome all participants for this workshop. I request Dr. K.V. Somnath sir to give a brief introduction of our resource person, Professor Dr. Chetan Chitalkar sir. Somnath sir. Namaskar. A very good afternoon to everybody. I am Dr. K.V. Somnath, Coordinator, Place of Higher Learning and Research of our college for the Nagpur University, Nagpur. I invite on behalf of our college, Dr. Chetan Chitalkar, Director, Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Government of India, Higher Education Department and Rural Management, Ministry of Education. I have the opportunity to introduce a great personality who is having a multi-dimensional abilities and skills and having a lot of power and knowledge in the given areas. He is a transparent personality with diversified experience of more than 30 years at different levels and different types of organizations. He is having an edge in drawing standard operating procedures appropriately to the organizations of a specific study. Being SAP, RP, HR functional consultant, he has also studied the processes and have given better solutions in the HR department. He has traveled across the country, visited more than 900 villages, and have understood different cultures in different organizations. He has drawn lines to facilitate the employees to be more comfortable in their working environment. He has conducted training and development programs at different levels and had tried to assess the performance also after the training programs. He has been successful in arriving at different modules for different categories. As far as the educational qualifications of our resource person are concerned, he is a dual postgraduate, marketing from Institute of Development Studies, Manas Gangotri, Mysore, and HRM from Institute of Rural Management, Anand. These specializations, along with his experience, has given us a lot of strength for today's workshop and has been very much included with formulating specific policies for the successful implementation in the modern competitive world. He has shared knowledge in management subjects like business ethics, marketing management, consumer behavior, performance management, corporate governance, management information system, etc. He has also submitted many research papers in understanding how 360-degree appraisal system works in different organizations at different levels. He is also an active researcher and conducting a research on taking help from our Vedas to improve the HRM system. With these few words, I request Dr. Chetan Chitalkar to bless all the participants and share the knowledge and expertise. Thank you very much, sir. No, sir. No, sir, right now. Sir, you are not audible. Hello. Sir, now it is audible. Yeah. So let me start by congratulating all the organizers involved in
scheduling this workshop on this particular day, 16th of March 2022. Second thing is, I heartily welcome the participants, both the faculty members as well as the students in this workshop, to understand what this ODOP is and how it is related to our new education policy of 2020, and why these higher education institutes have been pulled in between a government scheme and the beneficiaries across the country. There are three things. One question is, why higher education institute? And why our students, especially in higher education institutes, engineering, commerce, arts students are there. Then the third one is, why the faculty members should be involved in these programs, or incorporating or implementing these beneficiary schemes. Lot of running around the departments. तीसरा ये भी है, इससे हमें क्या फायदा है? माने हमें स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं, हायर एजुकेशन बीच में आ जाती है, और फैकल्टी मेंबर्स हमारे सर पे इतने जिम्मेदारियां ऑलरेडी है, और आगे हम इसके साथ मिलकर जैसे काम कर सकते हैं। और इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या फायदा है? अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बीच में आता है तो इसको क्या फायदा है? तीन प्रश्न हमारे सामने आती है। तो पहले हमारे स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये आगे अभी हमारे जो माहौल है, जो पॉलिटिकल माहौल है, टेक्निकल माहौल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, ये और एक 10-15 साल लगेंगे। ऐसे कोई इंडिया में ये कोई बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी आते रहे और हम बोलते रहते हैं, हम अरे हमारा जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाद में देंगे। 2020 में लागू हुआ था, अभी तक 2022 मार्च तक हम जवाब देते आ रहे हैं कि हम कोविड-19 में है सर, थर्ड वेव है सर, वो है सर, वे है सर। सो कुछ ना कुछ रीजंस देते रहेंगे नाकाम करने के लिए, नाकाम रहने के लिए। तो अगर काम करना चाहते हैं, तो कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला है, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग पार्ट विच लीड्स यू टू सम आउटकम। आप अगर ड्राइवर्स का स्कूल में 6 महीना ज्वाइन हो जाते हो, तो 6 महीने के बाद आप बाहर आके आपका खुद का कार चला सकते हो ड्राइवर बन के, या जो भी रेंट पे मिलता है वो कार को लेके आप चला सकते हो, और कम से कम 20 से 25, 20 से 40 हजार तक आमदनी आ जाती है। 6 महीना आप ड्राइविंग सीख लो, अच्छे से अच्छी तरह आप ड्राइविंग सीख लो। अगर ऑर्डिनरी कार चलाते हैं तो 20 से 30 हजार गारंटी, या हाई एंड कार चलाने की आपकी क्षमता है तो 30 से 40 हजार कम से कम आपको मिलती है। जैसे मैंने खुद एक ड्राइवर का हूँ, महीने के लिए 30 हजार रुपए, और उसको बाहर ले जाना पड़ता है तो 500 रुपए दिन में अलग लेना पड़ता है। तो 10 दिन अगर मैं बाहर जाऊं, 10 दिन के लिए 5,000, महीने का लिए 30,000 रुपए। सो 35,000 रुपए ड्राइवर को हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। ड्राइविंग स्कूल गया था, उसके पास लाइसेंस है, वो अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकता है, तो उसके जरिए उसका आमदनी आ जाती है। तो और जो हम देखते हैं एमबीबीएस है, एमबीबीएस में जो छात्राएं पढ़ते हैं, 4 बरस 4 दीवार के अंदर पढ़ते हैं, 5वीं बरस 12 महीने का एक एंटरप्रेन्योरशिप कर लेते हैं, इंटर्नशिप जो हम बोलते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद बाहर आके वो डॉक्टर बन जाते हैं। और डॉक्टर का मतलब आपको मालूम ही है, वो खुद का क्लिनिक में भी डॉक्टरगिरी कर सकता है, या कोई भी हॉस्पिटल में भी जाके उनका प्रोफेशन, वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन। हमारे थोड़े से इंजीनियर भी है, कॉमर्स एंड आर्ट्स में थोड़े स्टूडेंट्स रहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जो एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो ये एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स को बाहर आते ही काम मिल जाता है, क्योंकि उनमें जो क्षमता रहती है, स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं, वो स्किल्स रहती है, वो या जाके मार्केटिंग डिवीजन में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव करके ज्वाइन हो जाता है, या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर करके ज्वाइन हो जाता है,
या प्रोसेसिंग में अगर जुड़ता है तो प्रोडक्शन मैनेजर तरह ये डिसिग्नेशन में ज्वाइन हो जाता है। मैंने आउटकम बेस्ड एजुकेशन, उनका जो फोकस रहती है उसी के आधार पे वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम अच्छा मैनेजर जैसे बोलते हैं, उसको हम स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। को क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मैं एक अच्छा सा सिंगर बनना चाहता हूँ, गाने का प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं एक अच्छा सा स्विमर बनना चाहूँ, अच्छा सा स्विम करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं अच्छा सा एक मैनेजर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसके लिए भी दूसरे दूसरे दिशा में हम प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलते हो, कपिल देव के बारे में बोलते हो, अच्छे से क्रिकेट्समैन है। क्यों अच्छे से क्रिकेटमैन हुए? प्रैक्टिस किए, घर में बैठ के पढ़ाई नहीं की। अर्जुन हम अच्छे से तीरबाजी बोलते हैं, ग्रेट आर्चर बोलते हैं। क्यों? घर में बैठ के पढ़ा नहीं, प्रैक्टिस किया। वो द्रोणाचार्य के नीचे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो भी प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को अच्छे से अच्छा काम भी मिल जाता है। और जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम में पहले आउटकम बेस्ड एजुकेशन हुआ, तो प्रैक्टिस करो, इसके लिए मौका आपको है। हम बोलते हैं ये करना चाहिए, आप करना चाहिए। जैसे हम भी स्विमर है, इसलिए भी आपको स्विमिंग सिखाना चाहते हैं। मैं भी एक आर्चर हूँ, आपको भी आर्चरी सिखाना चाहता हूँ। ये हमें क्षमता है, इसलिए हम फैकल्टी लोग बने। अभी जो भी आप बनना चाहिए आपके सामने है, वो आप कुछ भी बनना चाहते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग इधर हैं। तो पहला आउटकम बेस्ड एजुकेशन, दूसरा स्किल डेवलपमेंट। स्किल का आप इम्प्रूव कितने प्रैक्टिस करते हो उतना ही आगे बढ़ते। और तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें हमें कोई भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं चाहते, कोई भी फैकल्टी मेंबर हो, क्योंकि एक फैकल्टी मेंबर या गुरु या टीचर या प्रोफेसर कोई भी डेसिग्नेशन में हम हो, तो ये गुरु के माने जो गुरु में हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते हैं, वो माने ब्रह्मा विष्णु महाश्वर, ये तीन अवतार में हम उसको देखते हैं। ये तीन लोग, ये तीन भगवान भी हमारे गुरु या हमारे टीचर या हमारे प्रोफेसर में होते हैं, जिसके लिए हम इनको नमस्कार करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ये ठीक रास्ता, अच्छे से रास्ता दिखाने की कोशिश करें। और मेरे जिंदगी में मेरा 35 ईयर से भी ज्यादा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। मैं 35 ईयर्स में, या मैं जब स्टूडेंट का और एक 21 बरस ले लूं, तो 21 और 35 35, तो 46 ईयर्स में मैं ऐसा, 56 ईयर्स में ऐसा कोई भी नहीं देखा कि एक गुरु उसके छात्र को बुरा रास्ता दिखाए, गलत रास्ते पे जाने के लिए बता दिया। ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। मैं हजारों हजारों टीचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और एक भी गुरु या एक भी ऐसे टीचर मुझे ऐसे नहीं मिला कि एक स्टूडेंट को अच्छा रास्ता नहीं दिखाए, सिर्फ अच्छे रास्ते दिखाते। तो यही रास्ते पे चलते हुए हम कैपेसिटी बिल्डिंग, अरे मेरे स्टूडेंट्स जाके आगे मैनेजर बने, मेरे स्टूडेंट्स आगे जाके इंजीनियर बने, मेरे स्टूडेंट आगे जाके एक अच्छा आदमी बने, तो यही कोशिश रहती है। तो ये इसका कैपेसिटी बिल्डिंग का इसके से क्या मतलब है? तो मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट स्टूडेंट ही ना रहे, वो कुछ आगे बन के कुछ आगे जाके कुछ बने। क्या बने? पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, अच्छा सिटीजन बने, सोशली रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। बाद में उसके जो जीवन में वो चाहता है, वो एक एंटरप्रेन्योर बने, अच्छा से अच्छा कंपनी प्रारंभ करे, और दूसरे लोगों को भी काम देने की क्षमता रखे, या कोई भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाए, अच्छे से अच्छा काम करे, उसका आमदनी महीने में 1 लाख से ज्यादा हो, जो मैं कमा रहा हूँ उससे ज्यादा हो, और वो जो अच्छे तरीके से पले फूले। तो यही आशीर्वाद रहता है, यही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसमें से हमारा कैपेसिटी भी बिल्ड हो जाता है। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक बडिंग मैनेजर नहीं हूँ, मैं एक बडिंग एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं आगे चल के कुछ बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। तो ये कोशिश रहती है हमारे फैकल्टी मेंबर्स में। तो यही जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है, जो मैं 3-4 ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहला है आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो, दूसरा स्किल डेवलपमेंट हो, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, और बाकी का लास्ट ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हम यही नहीं देखना चाहते एक स्टूडेंट खाली एक मैनेजर बने, पैसा कमाने की मशीन प्रारंभ करे, या एक पैसा कमाने की मशीन वो खुद हो।
सब छोड़ के वो खाली पैसा कमाए, ऐसा नहीं बोलते हैं। ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। सो वी वांट टू सी द स्टूडेंट्स आल्सो ए सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, विश्व मानव के रूप में हम हमारे स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं। ये भी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। अब कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन, एशियन में कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज आप देखो, जापानीज हो, साउथ कोरिया हो, दूसरे कोई भी आपको जो अच्छा से अच्छा कंट्री जो डेवलप हुआ है उधर देखो, प्राथमिक शिक्षण जो भी रहती है या प्राइमरी फोकस जो भी रहती है वो एजुकेशन में था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये एजुकेशन सिस्टम को आप पवित्र मानिए और इसको लेके आप कुछ बनने की कोशिश करें, जो हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो एक ही एग्जांपल लेके मैं बात कर रहा हूँ। ये तो प्रोग्राम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप लेके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, रूरल नहीं है, अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप भी हो, इसको लेके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और इसमें से कोई भी एक स्कीम का उदाहरण हम कैसे ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है कि मेरे पैरों पे मैं खुद खड़े होने की कोशिश करता हूँ। मैं दूसरों से डिपेंड नहीं करना चाहता, मैं दूसरों से डिपेंडेंसी रखना नहीं चाहती। मेरा खुद का एक छोटा सा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस में प्रारंभ करने का कोशिश करता हूँ या करती हूँ। और मैं उसको आगे ले जाने के लिए जो भी काम करना पड़ता है, मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो भी कुछ करना चाहिए मैं करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। तो फर्स्ट स्टैंडिंग ऑन आवर ओन लेग्स। दूसरा जो भी है, मैं काम मांगने के बदले, भीख मांगने के बदले मैं दूसरों को काम देने की क्षमता रखता हूं। सो आई एम गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स। वो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे आजू बाजू वाले हो, उनको मैं काम पे लेने की कोशिश करता हूँ। और थर्ड ऑब्जेक्टिव ये हो रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में कि आगे चल के मैंने इमीडिएटली आप एक फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन या छोटा सा यूनिट प्रारंभ क्यों ना कर दिए, आप विश्व मानव नहीं बन सकते। जो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स अगर आप पढ़े हैं तो वो बोलता है फर्स्ट यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। आपका जो बेसिक नेसेसिटीज है, आपको रहना, खाना पीना बंदोबस्त, आपका फूड सिक्योरिटी जो भी है वो पहला पूरा हो जाना चाहिए। बाद में आप कंफर्ट के तरफ बढ़ते हैं, आप सोशल सिक्योरिटी पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाद में आपका जो ख्वाहिश या डिमांड्स या नीड्स पूरा कंप्लीट हो जाए तो बाद में आप सोसाइटी की तरफ ध्यान देते हैं। माने एक 2-3 बरस आपके लिए आप काम करना चाहिए, आपका आमदनी आप अच्छे तरीके से लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा सेविंग करना चाहिए। आप जब सिक्योर होंगे कि अभी मुझे मेरे बारे में चिंता नहीं है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चिंता नहीं है, मेरे साथ में जो काम करने वाले हैं उनकी चिंता नहीं है, वो सेफ है, सिक्योर्ड है, मैं अभी आगे चल के मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। We could also see that in corporate social responsible activities. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज वो एक 50 करोड़ टर्नओवर का कंपनी नहीं रहेगी। द मिनिमम टर्नओवर रिक्वायर्ड टू contribute towards the society in terms of corporate social responsibility is minimum 500 crores। 500 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो उसमें से 2% आप CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा स्टेज में आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए बन सकते हैं कि आपके मन में है कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, सैक्रिफाइस करना। तो ये 4 रास्ते आपके साथ में हैं। पहला रास्ता है आप एमए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, बीई कर रहे हो, और टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हो। पहला रास्ता यही होता है कि सर इतना पढ़ने का बस नहीं है, आगे भी कुछ पढ़ना है, मुझे ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आगे चल के मुझे पीएचडी करनी है। ये पहला रास्ता जो आगे चल के और भी पढ़ने का और भी ज्ञान संपादन करने का, ये पहला रास्ता। सेकंड रास्ता होता है सर मेरा फैमिली का आमदनी कम है, हमारे घर में थोड़ा एडिशनल इनकम लाने की जरूरत है, तो इसलिए मैं कोई भी कंपनी में काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ।
तो कोई भी डेसिग्नेशन, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, क्लर्क, कोई भी डेसिग्नेशन में मैं ज्वाइन होने की कोशिश करती हूँ या कोशिश करता हूँ। सेकंड ऑप्शन, दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता है कि मेरा फैमिली का एक बिजनेस है, जो हमारे माता पिता चला रहे हैं, मेरी अंकल चला रहा है। मैं वो बिजनेस में या उद्यम में मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ और मेरे टांगों में मैं खड़े होना चाहता हूँ और उनको सपोर्ट कर थोड़े दिन के लिए मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ कि वो उद्यम में, वो बिजनेस में क्या हो रहा है। तीसरा रास्ता। चौथा रास्ता ये होता है कि शादीशुदा होके बाल बच्चे पैदा करके मैं कुछ ना करूं, खाली फैमिली लाइफ लीड करूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये चौथा रास्ता है। जो आखिरी जो रास्ता है, जो भी आपको लगता है कि अरे इसमें बहुत रिस्क है, और थोड़े लोग मानते हैं थोड़ा सा रिस्क होता है मगर हम ये रिस्क देख लेंगे, सही तरीके से हम निपट लेंगे, तो ये रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता। तो इसमें से आप थोड़ा सा जो भी मैं बात कर रहा हूँ इसको अगर गौर से आप ध्यान दे के सुने, तो स्टूडेंट के कैरियर में पहला शिप जो हम बोर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप। तो आपके कोई भी कंप्लीशन, बीकॉम हो, बीए हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन हो, एमबीबीएस हो, कोई भी प्रोग्राम आप कंप्लीट करते हो, बैचलर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें से आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जिसको इंटर्नशिप हम कहते हैं। इंटर्नशिप शायद आपके इंस्टीट्यूशन में 15 दिन का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन। मगर जितना भी इंटर्नशिप का अगर ड्यूरेशन ज्यादा है, इसका फायदा स्टूडेंट को होता है। ये इंटर्नशिप का मतलब क्या है? तो ये एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जो आपके क्लास में जो आपको पढ़ना सिखाया, पढ़ाई आप किए, उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें से लैंग्वेजेस रहती है, आपका कम्युनिकेशन, इधर आप हिंदी में बात करते हो या संस्कृत में बात करते हो, अंग्रेजी में बात करते हो, जो भी आप कम्युनिकेट करते हो ये ठीक तरीके से रहना चाहिए, जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अगेन जो स्किल मैं बोलता हूं तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आ गया, नहीं आ सकता। दूसरा है, ये इंटर्नशिप के आपको ऑब्जर्वेशन के लिए मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज ऑफ द सराउंडिंग, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द पीपल अराउंड यू। इसमें से बहुत सारे लर्निंग हो जाती है। आप इतना कुछ सीख लेते हैं ठीक तरीके से ऑब्जर्व करने से, मगर जो भी आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, ये आप एक पीस ऑफ पेपर, एक नोटबुक में लिख के रखना चाहिए। सर मैंने अभी रेलवे स्टेशन में था, इसमें से मैं ये ऑब्जर्व किया, मैंने ट्रेन ठीक टाइम पे आती थी, पैसेंजर्स रिस्पॉन्सिबल थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे, या पुलिस जो भी थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी अच्छा था, या जो भी हमारे टिकट कलेक्टर्स थे या रेलवे स्टाफ थे वो ऐसे बिहेव करते थे, उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा। और जो भी जो हॉकर्स थे रेलवे स्टेशन में, वो कुछ बेचते थे और ठीक एमआरपी के तरफ जो भी है पैसा वही लेते थे, और जो भी क्वालिटी का फूड मुझे हॉकर से भी लेना पड़ा वो क्वालिटी अच्छा था। ऑल दीज आर ऑब्जर्वेशंस, मैंने विच माइट नॉट हेल्प यू इंस्टेंटेनियसली। आप जैसे ऑब्जर्वेशन किए इमीडिएटली आपको कुछ फायदा नहीं है, आगे चल के आपके लाइफ में इसका फायदा 100% होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो भी आप नोट में रखने का एक इंटर्नशिप के जरिए आपको मिल जाता है। तीसरा जो भी है, आप जो भी मैनेजरियल स्किल्स की हम बात करते हैं, जैसे आपके जेब में जो भी पैसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कैसे ठीक तरीके से मैनेज करना है, या आपके आजू बाजू में जो दोस्त हैं, आप रिसोर्स इनको बोलते हैं, ये हमारे दोस्तों को कैसे मैनेज करना है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप इंटर्नशिप के लिए गए उधर अंदर जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका परफॉर्मेंस कौन सा लेवल पे है और इनका परफॉर्मेंस कैसे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट ट्रेनिंग देके। या आपका जो ऑपरेशंस है, जो शायद पुराने फैक्ट्री में पुराने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता होगा, तो इनको आप सजेशन दे सकते हैं आप पुराने मेथड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें से स्क्रैप ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। और ठीक तरीके का अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, आपका प्रोडक्शन
ऑप्टिमल कैपेसिटी में बनती है और आपका फायदा या आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो दूसरे दूसरे तरीके के मैनेजरियल स्किल्स होते हैं जो आप ये इंटर्नशिप के जरिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स, ठीक तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना, प्रोजेक्ट टाइटल लिखना, एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाना, आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटर्नशिप लिखना, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सैंपल्स उसके बारे में लिखना, मेथोडोलॉजी। और जब आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लेते हो तो ये प्राइमरी डाटा जो गोल्ड माइन है, सोने का अंडा है, वो इसको आप कैसे तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट इंफॉर्मेशन के जरिए आप राइट डिसीजन कैसे ले सकते हैं, और आपका कैपेसिटी फ्रॉम बीइंग ए स्टूडेंट टू बीइंग ए डिसीजन मेकर, आप में वो क्षमता होती है कि आप एक निर्धार ले, वो ये निर्धार आपको सही प्रमाण का जो भी डाटा है उसके ऊपर कैसे आप ले सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग पहले है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, दूसरा स्किल डेवलपमेंट, तीसरा कैपेसिटी। ये तीनों आपके इंटर्नशिप में होते हैं, मगर इसको आप समझ लेना चाहिए कि इंटर्नशिप इज नॉट ओनली ए पार्ट ऑफ करिकुलम बट इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं इधर थोड़े लोगों को देखा हूँ, 1,000 या 2,000 रुपए लेके जो मार्केट में मिलता है वो एक रिपोर्ट खरीद लेते हैं, उसमें नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज करके सबमिट कर देते हैं। और हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी बिजी होते हैं, उनको भी पूरा पढ़ने का जो टाइम नहीं रहती है, क्योंकि एक फैकल्टी के 50-60 स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी कुछ 40 या 50% मार्क्स देके भगा देते हैं, पुश कर देते हैं सामने। मगर जो भी लॉस होती है फैकल्टी मेंबर्स को कुछ भी नहीं होती है, या इंस्टीट्यूशन को कुछ भी नहीं होता है, लॉस ज्यादा होता है जो स्टूडेंट्स को होता है। वो आगे चल के कुछ कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपके बारे में कुछ बोलना पड़ता है, आप बोलते हैं माय नेम इज चेतन चितलकर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विद फर्स्ट क्लास एंड आई हैव डिड इंटर्नशिप इन APMC agricultural produce marketing committee focusing on the storage aspects of potato, and this is what I have done in my project report. And further to that, I have also joined my hands with the different organizations in rural areas, like the rural institutions, gram panchayat, other self-help groups and non-governmental organizations. And I am here for contributing something towards the development of the organization. तो बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप में जो भी अभी प्रोजेक्ट किए उसका टाइटल क्या है। तो आपको, आपने अगर ठीक ठाक एक प्रोजेक्ट किए हैं तो उसका टाइटल पूरे प्रमाण में आप बता सकते हैं। अगर नहीं किए हैं, उसका वैल्यू मालूम नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है, क्या सर मैंने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे प्रोजेक्ट किया, मैंने मार्केट सर्वे के बारे में प्रोजेक्ट किया, या मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में प्रोजेक्ट किया, तो ये सुनते ही उनको पता लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं, आप फैकल्टी मेंबर्स को बोल सकते हैं देवेश, या आपके दोस्तों को बोल सकते हैं, मगर जो भी आपको काम देता है I think there is a power failure. We'll wait for a few minutes.
या थैंक यू। हमारे तेलंगाना का देन है। अ, तो कभी कभी पावर चला जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि दूसरा जनरेटर का है, उसमें ये पावर पे चल रहा है, बीच में अभी फिर पावर आएगा तो एक जनरेटर से फिर हम रेगुलर पे जाते हैं, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्लीज बेयर विथ मी। I was telling you something about joining an organization after completing the internship. तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये इश्यूज जो आपके इंटर्नशिप में आप किए, इसका इश्यूज क्या क्या थे? आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप जो मार्केट में मिले वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉपी करके दिए है, और वो बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव्स, इंटर्नशिप में आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, आपका लर्निंग क्या था। तो आप अगर ठीक तरीके से किए हैं तो मैंने कंपनी का जो भी गाइड था और हमारे फैकल्टी मेंबर मेरा गाइड कौन थे, उन दोनों को मैं मिला के जो कंपनी में इश्यूज थे या प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में मैं डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद इसको एक टाइटल हम से फॉर एग्जांपल द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके बारे में मुझे कंपनी मैनेजमेंट ने इंटर्नशिप करने की अनुमति दी, और हमारे फैकल्टी मेंबर्स की सहायता से मैंने क्वेश्चनर डिजाइन किया थे। उनमें सब लोगों को बात किया, ये क्वेश्चनर एडमिनिस्टर की, और जो भी प्राइमरी डाटा था इसको मैं टैबलेट किया, और डिफरेंट समझ में आई आफ्टर एनालाइजिंग, इंटर इवेल्युएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा। तो बाद में मैं ये डिसीजन ले सका, दिस इज द रीजन फॉर देयर डिससेटिस्फैक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट दीज रिवार्ड्स टू इम्प्रूव फर्दर, टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी कुछ आप किए हैं वो आपके जो भी आपको प्रश्न पूछता है काम देने के लिए मैनेजमेंट, उनके सामने आप उत्तर दे सकते हैं। अगर नहीं दिए तो यही पता चलता है कि आप एक झूठे आदमी, क्लियरली। माने वो 3-4 प्रश्न पूछते ही उनको पता चल जाता है कि ये आदमी आपके माँ बाप को झूठ बोल चुका है, अपने फैकल्टी मेंबर्स को झूठ बोल चुका है, सोसाइटी को झूठ बोलना चाहता है, और हमारे कंपनी में अगर ज्वाइन हुआ उधर भी झूठा ही रहेगा और काम कुछ भी नहीं करेगा, टोटली इररिस्पॉन्सिबल इडियट है, इसको काम नहीं देने का। अगर आप भी मेरे सीट में बैठ के थोड़ा समझने की कोशिश करो, कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो झूठ बोलने वाले को या कामचोर को काम नहीं देना चाहता है। तो यही एक कोशिश है कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी है इन लोगों को थोड़ा समझदार, रेस्पॉन्सिबल, कमिटमेंट होने का जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने का क्षमता हो उन लोगों को, तो आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये एक स्कीम का उदाहरण मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ऐसे बहुत सारे स्कीम है, गवर्नमेंट ने 100 स्कीम लाए और जितने स्कीम्स लाए पूरे इनकॉर्पोरेट या इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, मगर ये ऐसा एक स्कीम है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इज अ सिंगल विंडो सिस्टम। ये जो आगे पढ़ाई करने के लिए लोग आते हैं, ये उनके लिए नहीं है। वो आप आगे पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ो। जो भी आप घर में बैठ के जो शादीशुदा होके घर में आप टाइम पास करना चाहते हो, ये उनके लिए भी नहीं है। और जो तीसरे लोग हैं जो उनका अगर खुद का बिजनेस है, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए है। और जैसे मैंने बोला, जो पांचवी जो आखिरी रास्ता जो भी है, सर मैं कुछ बनना चाहता हूँ या मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनके लिए ये ओडीओपी का स्कीम है। ये ओडीओपी माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का स्कीम है। ये सिंगल विंडो सिस्टम है। ये सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये 8 पेजेस का एक लंबा एप्लीकेशन है। मैंने वो उनको आपको दिखाएंगे। ये अगर 8 पेजेस लंबा एप्लीकेशन आप ठीक तरीके से अगर फिलअप किए, तो आपको दूसरा ऑफिसर्स घूमने की या 10 ऑफिस चक्कर काटने लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस था, दूसरी बार और एक लोन के लिए बैंक को एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी,
तीसरा जीएसटी नंबर के लिए और एक ऑफिस जाना पड़ता था, लेबर लाइसेंस लेने के लिए और एक ऑफिस लेबर ऑफिस जानी पड़ती थी, और आपको कुछ एफएसएसएआई जैसे मैंने बोला फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नंबर चाहिए, कोडिंग चाहिए, तो कोड के लिए एफएसएसएआई ऑफिस जानी पड़ती थी। अगर आपके ऑफिस में से कुछ धुआं निकल रहा है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ए पोल्यूशन, देन यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग में जुड़ना चाहते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नंबर आपको और एक डिपार्टमेंट से मिलना था। तो जो भी एक फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन उसको बोले कि आप 10 ऑफिस जाना पड़ता है, 100 बार चक्कर काटनी पड़ती है, जो भी आगे माने 100 लोग अगर सामने आते थे, हाँ सर मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, और ये समझते हैं कि 10 ऑफिस को 100 बार चक्कर काटनी है, तो वो भाग जाते थे, कोई भी सामने आते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस को चक्कर काटना आप सबको मालूम है कितना मुश्किल है और कितना आसान है काम कराना उनसे। तो इसके लिए ये स्कीम्स फेल हो जाती थी। तो अभी ये सिंगल विंडो सिस्टम है, आप एक बार अगर एप्लीकेशन फिलअप कर दिए तो आपको एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में हो जाएगा। बैंक लोन के लिए उधर से ही आपको रिकमेंडेशन मिलेगी, आपको जीएसटी नंबर उससे वही एप्लीकेशन से मिलेगी, आपको जो भी फूड प्रोसेसिंग का एफएसएसएआई का नंबर है उसी एप्लीकेशन से मिलेगी। आपको जो फॉरेन को भी अगर एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस का जरूरत है, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस भी आपको इसी एप्लीकेशन से मिलेगी। ये पूरे सुविधा सिंगल विंडो सिस्टम में है और आपको एक ही एप्लीकेशन में मिलता है। और जो भी आप एंटरप्रेन्योर बनाने, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, देवेश है, शिवानी है, प्रिया है, और ये पूछ सकते हैं सर मुझे आशा तो है, मेरी क्षमता भी है, मगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप एक एप्लीकेशन फिलअप करके बोल सकते हैं सर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। मगर एक्सपीरियंस चाहिए, ये कौन सी प्रोसेस में आपको एक्सपीरियंस चाहिए? जैसे मैं बताऊं, आलू में से या प्याज में से ऑनियन स्टार्च बना सकते हैं, ऑनियन में से हेल्थ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ऑनियन का प्यूरी बना सकते हैं, जो कांदा हम बोलते हैं, हमारा प्याज सब हिंदी में बोलते हैं, कांदा बोलते हैं मराठी में। तो इसका प्यूरी बना सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं, इसका हेल्थ प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें से दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप ट्रेनिंग होना है तो किस लिए होना है? आप ऑनियन स्टार्च बनाना चाहते हैं, वो स्टार्च बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आप प्रोक्योरमेंट कौन सा क्वालिटी का प्याज को खरीदना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है, कहाँ स्टोर करनी है, अगर आप स्टोरेज लॉजिस्टिक्स में जुड़ना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कैसे ट्रेनिंग लेना पड़ता है, या आपको ये जो ऑनियन है, प्याज है, प्याज का पाउडर जो ऑनियन स्टार्च बोलते हैं, जो अब बहुत सारी इंडस्ट्री डिमांड कर रहा है ऑनियन स्टार्च के लिए, वो कैसे आप उत्पाद कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप ट्रेनिंग अगर मुझे होना है तो आप बोलना चाहिए सर मुझे प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग चाहिए, मुझे मार्केटिंग में ट्रेनिंग चाहिए, मुझे लॉजिस्टिक्स में ट्रेनिंग चाहिए। ये आपके मन में क्लियरली होना चाहिए। और इसको फिलअप करने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन इसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने एप्लीकेशन रख दिए और फिलअप कर सकते हैं, इतना आसान नहीं है। यू हैव टू गो इन डिटेल, समझना चाहिए इसमें क्या क्या है। उसमें बोलते हैं आप ऑलरेडी एक फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसका डिटेल्स कैसे फिलअप करना है। जैसे आप सबने देखे होंगे, सब जगह थोड़े यूनिट्स प्रारंभ हो जाते हैं और थोड़े ही दिन में मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं? वो लोग सब्सिडी के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे मैंने बोला अभी, ओडीओपी स्कीम में 10% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आपका एक टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख है, उसमें से आपको इन्वेस्ट करना है 10%, दैट इज 1 लाख रुपीज, और बाकी का 3.5 लाख 35% जो भी है वो आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन डाल दिए, 1 लाख रुपए डाल दिए, आपको 3.5 लाख रुपए आ गए, जो पहले होती थी। जो मिडिलमैन आते थे, आपसे 2 लाख रुपए खा जाते थे, आपको लोन आपके सर पे डाल के भाग जाते थे। ऐसा नहीं है, आप इंडस्ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रारंभ हो चुका है और ये अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आपके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि मिडिलमैन वो लेके आपसे 2 लाख लेके भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। तो बाद में अब जब आप लोन जो भी लिए 5.5 लाख का, 10% आपका इन्वेस्टमेंट होता है, सीड अमाउंट, 10% 1 लाख, इन 10 लाख अगर आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो, 3.5 लाख का आपका सब्सिडी होती है। वो सब्सिडी आपको हंत हंत में स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। और जो भी 5.5 लाख रुपए का लोन है, जो टोटल अमाउंट, ये आप 3 बरस, 5 बरस या 7 बरस में आप वापस दे सकते हो इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो इसमें से 20,000 से लेके 2 करोड़ रुपए तक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। मगर ऐसा नहीं है कि देवेश को मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, देवेश मुझे अच्छा लग रहा है और देवेश 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, मैं दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देवेश से बात करता हूँ, देवेश से पूछ लेता हूँ आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका विजन क्या है, आपका टोटल कॉस्ट आपका मन में क्या है, आप इसमें से कितना पैसा आप लैंड पे लगा रहे हो, कितना पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हो, कौन सा कंपनी से आप मशीनरी खरीद रहे हो, मशीनरी खरीदने में हमारे सहायता चाहिए, और इसमें अगर स्किल्ड लेबर को आप लेके काम कराना है, ये स्किल्ड लेबर को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो। स्किल्ड लेबर को ट्रेनिंग देने से पहले मैं देवेश को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर स्किल्ड लेबर्स अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम पैदा करे तो देवेश खुद वो संभालने की क्षमता रखता है। तो यही दिशा में जो भी देवेश करना चाहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी कुछ प्रोसेसेस हो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट तक लेके जाती है, तब तक मैं देवेश को ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूं। और देवेश चाहे सर मैं प्रोडक्शन तो कर लिया, मेरे गोडाउन में तो फिनिश्ड प्रोडक्ट की ये पड़ी है, तो इसको कौन देगा। तो इसमें से हम मार्केटिंग माने सेल्स के लिए भी हम मदद कर सकते हैं। माने इंस्टीट्यूशनल सेल्स होते हैं, अगर आपके आजू बाजू में जो भी हॉस्पिटल्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो टाटा या विप्रो या रिलायंस ऐसे बड़े बड़े कंपनीज आपके तरफ से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, इसका जो व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं आपको चाहिए सर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए कंज्यूमर को पहुंचा सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर का अपॉइंट कर सकते हैं। नहीं मैं होलसेलर रिटेलर बाद में कंज्यूमर को सेल करता हूँ, तो उसका भी हम आपको मदद करेंगे। और आप ये बोलते हैं सर अभी तो ऑनलाइन मार्केट बहुत इजी है, तो ऑनलाइन मार्केट में मैं जाना चाहता हूं, तो इसलिए कौन सा सिक्योरिटी आपको मिलना चाहिए। मैंने आप किसी को बेच दिया, आपको पैसा नहीं मिला, जैसे पहले होती थी। अब इंडिया से बाहर हम एक्सपोर्ट करते थे मगर हमें पैसा नहीं मिलता था, जो हमारे मिडिलमैन के पास चले जाता था और जो भी एक्सपोर्ट किया वो मर जाता था। तो अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अगर आप बाहर देशों को भी अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका पैसा सिक्योर्ड रहता है, माने आपका पैसा आपको मिल जाता है, मगर इसमें जो स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं इसके बारे में भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैं विशाल को बोलता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा पीपीटी दिखाए। ये ओडीओपी एक ही स्कीम नहीं है, मैंने खाली आपको एक स्कीम के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे स्कीम है। ओडीओपी रिलेट करती है फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण प्रदेश में से हमारा 70%, 70 to 75% पॉपुलेशन आर देयर इन विलेजेस। इसमें से शायद तकरीबन 25 लाख फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी रूरल एरियाज में है, और 25 लाख में तकरीबन 20 लाख फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। ये जान के अभी खुशी होगी, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले कुछ चला रहे हैं, हमारे जो ग्रामीण प्रदेश में है उसमें से 20 लाख फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, क्षमता के आधार पे चल रहे हैं, और इनका अच्छा कंसिस्टेंट लेवल भी है। ये 40 to 45% रिटर्न्स जो भी हमारे गवर्नमेंट चाहती है वो देने की क्षमता रखती है।
तो इसीलिए हम हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स है या फैकल्टी मेंबर्स है, उनके जरिए जो भी ये बेनिफिशियरीज है या एप्लीकेंट्स है, वो जो हद तक हमें उन लोगों तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक आप पूछेंगे तो आप क्या किए सर, कोविड-19 2 बरस हो गए। तो ये प्रोग्राम, ये स्कीम जो चालू हुई जनवरी 2021 में प्रारंभ हुआ था। अभी फरवरी 2022 तक 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हो गए हैं, माने काम कर चुके हैं, काम करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि ये स्कीम जो एंड होने का चांसेस है 2025 मार्च 31। तो ये 5 बरस का स्कीम है, 21 में चालू हुआ था, 25 मार्च 31 को इसका बंद किया जाने का प्लान है, क्योंकि 5 लाख फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ करने का प्लान है। ऑलरेडी 60,000 टारगेट हो चुके हैं कोविड-19 काल में भी, और 4,40,000 प्रारंभ करने का ये बड़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशंस इतने आ रहे हैं। क्योंकि एक एक स्टेट में जो भी 704 डिस्ट्रिक्ट्स है जो भी चुने गए हैं ओडीओपी स्कीम के लिए, 704 डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू इसका स्कीम इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो इसका जो भी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने है। आप आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना चाहते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आप एक रिपोर्ट देना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, इट इज फॉर योर ओन डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुझे इतना ही मिलने वाला है कि मैंने देवेश से बात किया, मैंने शिवानी से बात किया, मैंने कोई भी निकिता इनसे बात की, और मुझे अच्छा लगा कि अच्छे बच्चों के बात किया। 100 बच्चे में से अगर 5 बच्चे भी अगर आगे आए, 5 एंटरप्रेन्योर भी अगर बने, तो याद करेंगे कोई टकलो आदमी आया था हमें वर्कशॉप में, हमें थोड़ा गाइडेंस दी, उनका नाम चेतन चित्तलकर था, और उनके वजह से मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रारंभ किया हूँ। और मेरा तो नंबर वेबसाइट में जैसे पब्लिक पेपर में डालता है वैसा मिल जाता है, कोई भी आपको बता देंगे। तो अगर आपको चाहिए मैं आगे भी इसमें आके जो फोकस होती है ट्रेनिंग के बारे में आपको बात करनी है, वर्कशॉप करनी है, या आपको मार्केटिंग के बारे में वर्कशॉप करनी है, इसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे। अभी तो शायद टाइम हो गया है, शायद 5 मिनट हमारे सामने है। फिर भी मैं विशाल को एक बार प्रेजेंटेशन करने की रिक्वेस्ट करता हूं। उससे पहले अगर हमारे सामने हमारे साथ में जो भी है, सर का मेरा नाम वो शिक्षा मंडल करके दिखाई दे रहा है, उनका नाम थोड़ा जानना चाहता हूँ। परिष्कृत अग्रवाल जी, परिष्कृत अग्रवाल। परीक्षित अग्रवाल। तो अगर कोई प्रश्न है आपके जरिए तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी हमारे छात्र हमसे जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, वो अगर उनमें मन में कुछ डाउट है, आगे कैसे बढ़ना है सर, वो इसमें और कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जैसे ओडीओपी में अगर मान लो मुझे कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो सर उसके लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, जो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट जो आपने बताया है कि 10% मुझे लगाना पड़ेगा, 35% सब्सिडी मिलेगा, रिमेनिंग 55% विल एक्ट एज अ लोन। वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या होगा सर कि मुझे ओडीओपी में वो फैसिलिटी मिले? हाँ सर, वही अभी जो एप्लीकेशन आप देखते हो, ये एप्लीकेशन आप देखो, उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें पूरा डिटेल्स है। एक एप्लीकेशन में ही आपका जो भी जीएसटी नंबर हो, बैंक एप्लीकेशन हो, ट्रेड लाइसेंस हो, लेबर लाइसेंस हो, एक्सपोर्ट लाइसेंस हो, पूरा एक ही एप्लीकेशन के, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल विंडो सिस्टम। आप लोन के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा कि आपको मालूम नहीं है कि आपके नजदीक कौन सा बैंक में ये लोन दिया जा रहा है। ये जो एप्लीकेशन आप फिलअप करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जाती है, तो उधर एक आदमी होता है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन करके एक आदमी होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट में है। आप ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना है, उसको ढूंढना है, उसके ऑफिस में वेट करना है, वेट करने के बाद उनसे मिलना है, उनके हाथ कुछ गर्म करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेबसाइट में है, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को जो भी आज वर्कशॉप हो रहा है, इसका मुझे एक आप रिपोर्ट देंगे कि आपके साथ इतने फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे।
हम ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, दोनों को एक कॉपी देंगे और यही रेफरेंस रख के आप पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से आपको क्या ग्रीन सिग्नल मिलता है। आप फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्री यूनिट कितने आप विजिट कर सकते हैं, आप लोन एप्लीकेशन कहाँ डाल सकते हैं, आपके नजदीक में अगर शायद आप एक प्लेस XYZ कौन सा के एक प्लेस में है, वो प्लेस में कौन सा बैंक आपको लोन देती है। और आपको समझो अभी मैंने ऑनियन स्टार्च के बारे में बात किया, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है जो प्याज का पाउडर, व्हाइट पाउडर बनाती है, जो 3 स्टार 5 स्टार अभी बहुत सा इसको डिमांड है कि जितना डिमांड है उतना पूरा नहीं कर सक रहे हैं और इसलिए इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो अगर इसमें से जुड़ना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं इसका मशीनरी कहाँ मिलती है और इसका ट्रेनिंग कौन देते हैं। ये पूरे सुविधा आप एक ही एप्लीकेशन के द्वारा आपका एक फाइल बनाया जाता है। आपका ये एक फाइल बना के आपको बात करते हैं, आपको जो भी कुछ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मदद चाहिए, हेल्पिंग हैंड चाहिए, पूरे जो भी आपको कुछ चाहिए ये रिक्वायरमेंट उसमें रिकॉर्ड होती है और उसी के द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, मदद दिया जाता है, हेल्पिंग हैंड दिया जाता है। Thank you. Student, if you are having any question, you can ask. Vishal, are you there? अगर विशाल अग्रवाल शायद, ओके, मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करने की मौका अपॉर्चुनिटी देंगे। मैं एक वेबसाइट में ये कैसा एप्लीकेशन आपको कैसा दिखता है, ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आपको दिखा देता Yes. दिख रहा है? Yes, sir. या दिख रहा है ना? Yes, sir. Please visit. या ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, शायद 5 मिनट लगेगा। ODOP के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, जो हमारे महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन से जो दिया जा रहा है। इसमें MGNCRE के बारे में आपको तो मालूम ही है। वी आर ए काउंसिल, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन। वी आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ऐसे रूरल एरियाज में, ग्रामीण प्रदेश में जो भी हमारे हाथ में होता है वो कंट्रीब्यूट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, रूरल एरियाज डेवलप होते हैं, ग्रामीण प्रदेश डेवलप होता है, इसके लिए हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेल बना दिए और ऐसे वर्कशॉप्स कर रहे हैं और दूसरे दूसरे तरीके के वोकेशनल जो भी कोर्सेस है वो भी हम दे रहे हैं। और नेक्स्ट MGNCRE जो ODOP में जुड़ने का यही है कि जो भी आप इंडिविजुअल हो या आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके ग्रामीण प्रदेश में ऑलरेडी है, इसको भी हम लेके आगे चल सकते हैं। या पूरे बड़े पैमाने में जो भी ये वर्कशॉप में बताने की थोड़ी मुश्किल होगी, एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मन में इतना ही प्रश्न उठता है कि कैसा करे, क्या करे, क्यों करे, ये सभी पहले अपने माइंडसेट चेंज करना है। मैंने हमारे जो आजादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, 75 इयर्स हो गया है इंडिपेंडेंस की, फिर भी हमारा जो मन में रहता है, मैं किसी का नौकर बनना चाहता हूँ, ये हमारे दिमाग से बाहर नहीं जाती है। तो अगर कोई भी अगर उद्यमी बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट करना चाहता है, तो उसके लिए ये ODOP है जो हमें खुद के लिए काम करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। जैसे मैंने भी बीच में 3-4 साल एंटरप्रेन्योर बना था, बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ दी, फिर मैं काम पे लग गया, अब फिर एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ।
तो एंटरप्रेन्योर बनने में इतनी खुशी लगती है कि दूसरों के लिए हम काम नहीं कर रहे। शायद ये मेरा सुबह से चौथा या पांचवा वर्कशॉप है, मगर मैं खुश हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। और ये जो आपको वेबसाइट दिखती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसा दिखती है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो इसमें से आपको दूसरे दूसरे तरीके के स्कीम्स मिलते हैं, जैसे ओडीओपी है, ओडीओपी के जैसे दूसरे दूसरे स्कीम्स मिलते हैं। आप शायद प्लास्टिक प्रोडक्शन में जाए, आप शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप्स प्रोडक्शन में जाए, या कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई माने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की इंडस्ट्री में जाए। ऐसे दूसरे दूसरे हैं जो एमएसएमई से जुड़ते हैं, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस में जुड़ते हैं। सो जैसे मैंने बोला, ऑलरेडी 25 लाख यूनिट्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 66% हमारे रूरल एरियाज में है। ये 66% में 80% फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस है जो हमारे ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं। और जैसे आप पूछे सर मैं एप्लीकेशन डालूं तो मुझे लोन कहाँ से मिलती है, मैं एप्लीकेशन डालूं मुझे ट्रेड लाइसेंस कहाँ से मिलती है, मैं एप्लीकेशन डालूं मुझे FSSAI का नंबर कहाँ से मिलता है, ये सब आपको यही की सिंगल विंडो सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के अंदर मिल जाता है। एक अम्ब्रेला जैसा है। और इसमें से जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग का, आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्षमता रखते हैं। और टोटल लेआउट जो भी पूरे देश भर में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश ऑलरेडी किया गया है। एक एक स्टेट के लिए 300 से 500 करोड़ रुपए तक दे दिए। जैसे मैंने कर्नाटक के बारे में स्पेसिफिकली बोलो, 500 करोड़ ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 800 करोड़ से ज्यादा अमाउंट रिलीज हो चुका है। तो ये अपने आप में है कि इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। आप एप्लीकेशन का थोड़ा रुख देख लीजिए। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के वेबसाइट में आता है, इसमें से ये लिस्ट ऑफ स्टेट नोडल एजेंसीज, इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं चेतन चित्तलकर हूँ, मुझे बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसीज का चीफ, मगर अभी नहीं हूँ। तो आप पूछ सकते हैं, देयर इज अ राइट टू इन्फॉर्मेशन आल्सो। कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप एक पत्र लिखे तो मैं नहीं बोल सकता कि मुझे पत्र नहीं आया। अगर मैं 15 दिन के अगर मैं उत्तर नहीं दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाता। तो इसलिए इधर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया गया है, कमिटमेंट फिक्स कर दिया गया है। अगर आप एक पत्र लिखे तो उसका जवाब आपको 15 दिन के अंदर अंदर मिलना चाहिए। तो इसका पूरा डिटेल्स, आपके डिस्ट्रिक्ट नोडल पॉइंट कौन से और आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन कौन है, इसका पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और दूसरा, जैसे प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन सब ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आईडी नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, ये पूरा इसमें देनी पड़ती है। और जो भी एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना, इसको स्टोर करना, इसको फिल्टर करना, और इसका दूसरे दूसरे प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग होने के बाद इसको पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद इसको कोड नंबर देना, इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर छापना, और फिर स्टोर करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि वो कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। और दूसरे दूसरे तरीके के जो मशीनरी या प्लांट की जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में ये जो छोटा सा एक 10 लाख का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसका डिटेल्स चाहिए, मगर मैं आपको खाली एक ही स्लाइड में 10 लाख का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी पैकिंग आपको दिखता है, कोई भी प्लास्टिक में कैसे पैक कर सकते हैं, कांच का बॉटल में कैसे पैक कर सकते हैं, जिंक पेपर से कैसे पैक कर सकते हैं, दूसरे दूसरे तरीके के पैकिंग के ऊपर कैसा इंस्ट्रक्शंस डालना चाहिए, इंग्रेडिएंट डालना चाहिए, उसके ऊपर वेज या नॉन वेज का सिंबल डालना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैंडेटरी रूल्स है, वो उसको फॉलो करना पड़ता है। इतना मुश्किल भी नहीं है मगर इतना आसान भी नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं, इट इज अंडर उन्नत भारत अभियान या वोकल फॉर लोकल, या जो भी हमारे ग्रामीण प्रदेश के लोगों के लिए जो भी आप
चाहते हैं वो उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज्यादा बोलने का अगर वर्कशॉप कंटिन्यू करें तो रात तक हो जाता है। ये तो पहला स्टेज है, पहला स्टेप है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूं, अगर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर्स है वो ये वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, और इसके बारे में अगर और भी ज्यादा जानकारी हो और ट्रेनिंग की जरूरत हो तो इसके लिए हम आपके साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन एंड ओवर टू यू अगरवाल। Thank you, sir. Thank you very much. Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, in collaboration with IQAC, GS College of Commerce, Varda, organized online workshop on One District, One Product. For that, we had a detailed session from Dr. Chetan Chittarkar, sir, Director, MGN CRE. On my behalf, I express my sincere gratitude towards you, sir, for such a great experience for our students. My heartfelt thanks to Dr. Anil Rampeki, officiating principal, GS College of Commerce, Varda, for consistent support to organize these type of programs. I would like to thank Professor Anand Kade, sir, Dean MBA Department, for valuable guidance. I also extend my thanks to Professor Parishit Agrawal, IQAC Coordinator, for the organization of this workshop. Finally, I thank the wonderful students who have turned up in such a great numbers. Once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. भाई कुछ बोलना चाहते हैं, एक दो वर्ड? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। महाराष्ट्र से हो, नागपुर से हो, अनम्यूट कीजिए आप। सर जस्ट लास्ट मोमेंट में भी ज्वाइन हुआ मैं। भवेश जसानी, डॉक्टर भवेश जसानी। यस सर, एम आई ऑडिबल? नहीं, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है सर? आ रही है, ठीक है, अनम्यूट हूँ सर मैं। सर वी आर एबल टू हियर सर। या योर वॉइस इज क्लियर सर। यस सर। So thank you very much to the whole team of GS College Varda for organizing such a wonderful workshop, and that is very much beneficial for the students. And no doubt our great motivator, our great leader, Dr. Chetan Chittarkar sir, is always with us, and he is always with some new ideas, some new innovation, some new thoughts, some new experiences. So I would like to thank Chetan sir also for motivating our students. And no doubt students are the golden child of each and every institute. So I would like to congratulate the students being a part of this wonderful session, and our best wishes to all of you, and we will be definitely come back with new projects. And if you show your interest to launch some entrepreneurship programs, then definitely we are with you. So my best wishes to all of you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.